ये है शहर कलकत्ता, जहां आज से तकरीबन 300 साल पहले शुरू हुआ था हिंदुस्तान पर साम्राज्यवादी ताकतों की गुलामी का काला दौर। विशाल समंदर के रास्ते हुगली के किनारे पर शुरू हुआ कंपनी राज और हिंदुस्तान को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने का षड्यंत्र। मिट्टी और पानी से संसार गढ़ते, धरती की छाती से लोहा उत्पन्न करने वाले मासूम हिंदुस्तानियों को जब तक इस बात का पता चलता, उनके पैरों में बेड़ियां पड़ चुकी थीं। उनके हक और अधिकार खत्म हो चुके थे। लेकिन आज तो अपनी सरकार है, फिर आज अपने हक और अधिकार की मांग करने पर ये कत्लेआम क्यों? जिसमें भू अर्जन कानून का बदलाव है, जिसमें भी कंपनियों को ज्यादा जमीन देने के पक्ष में है, और नया राष्ट्रीय पुनर्वास कानून जो ला रहे हैं उस कानून में भी पुनर्वास का नाम कम है, विस्थापन अधिक बढ़ेगा, ऐसी भीति डर लग रहा है। तो इस संसद में आने वाले 2 कानूनों के बारे में हमारा मसौदा मंजूर होना चाहिए, जो विकास नियोजन का है, भूमि उच्छेद का नहीं, विस्थापन का नहीं, केवल पुनर्वास का नहीं। विस्थापन न हो ऐसा विकास का नियोजन कैसे हो सकता है, ये हमारे मसौदे में दिया हुआ है, जो मंजूर भी किया केंद्र की सलाहकार समिति ने। लेकिन संसद में नए कानून गलत रूप से ला रहे हैं, तो नंदीग्राम से नर्मदा तक या शेष विरोधी संघर्ष तक के सब लड़ाइयों की मिलकर ये जो भूमिका है वो आगे जाएगी। গড়ে তুলুন সেজের বিরুদ্ধে নন্দীগ্রাম থেকে নর্মদা পর্যন্ত আন্দোলন গড়ে তুলুন ভূমি উচ্ছেদ। इसलिए ये जो बोला जा रहा है कि विकास के लिए हम कर रहे हैं, बात तो अच्छा है, विकास कौन नहीं चाहता है। स्कूल बढ़िया चले, स्वास्थ्य सेंटर बढ़िया चले, खेत बात में पानी है बढ़िया चले, बिजली है, ये सब कौन नहीं चाहेगा। लेकिन अगर जिसको चाहिए, जो आदमी है, उसी को ही बंगाल की खाड़ी में डुबा करके विकास करने की बात कोई बोलेगा तो कोई भी जनता इसको पसंद नहीं करेगी। বুদ্ধদেবের নীতি যে গরু বাছুর সব চলে যাবে, খাবে না, জমি নিয়ে আসবে আমার শুয়ারের বাচ্চা, আমার বাচ্চা এখানে ছুরি মারুন, আমি চলে যাই, চোখের জল আর ফেলে রাখতে পারছি। আমাদের আজটা গ্রামের মধ্যে ছড়িয়ে নেই, সে লড়াই আজকে সারা ভারতে তো বটেই, সারা পৃথিবীতেই প্রশ্ন তুলেছে। 2 বছর আগে সিঙ্গুরের নাম হুগলি জেলারও সব মানুষ জানতেন না, আজকে সিঙ্গুরের নাম সারা পৃথিবীর মানুষের কাছে মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ছে। তার কারণ সুদর্ণ বাবুর মতো মানুষ, যিনি না খেয়েও তার জমি 7.5 বিঘে জমি সরকার কেড়ে নিয়েছেন। এই সরকার একটা মিথ্যেবাদীদের সরকার। সরকারের মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, শিল্পমন্ত্রী, সিপিআইএম এর নেতা, অনাবাসী এমপি বৃন্দা কারাত, এরা একের পর এক মিথ্যে সিঙ্গুর সম্পর্কে বলে গেছে, যেটা আমি আমার এই 60 বছর বয়সেও আমার ধারণা ছিল না যে সরকারের উচ্চ পদেতে থেকে এই রকম নির্জলা বুদ্ধদেব সরকার গণহত্যাকারী সরকার, খুনি সরকার, নারী ধর্ষণকারী সরকার। তাদের বিরুদ্ধে আমি নারী জাতিদের বলছি এবং বেকার ভাইদেরও বলছি, বন্ধুদেরও বলছি, আমি এখানে কোনো নেত্রী নয়, আমি তোমাদের মধ্যেই, তোমাদের বোন,
তোমাদের মেয়ে। তাই তোমাদের কাছে আমার বিনীত অনুরোধ, বহু আশা নিয়ে নন্দীগ্রামে থেকে আমি এসেছি। এখানে হিন্দু, মুসলিম, জৈন, খ্রিস্টান, গুজরাট, মারাঠি কেউ পৃথক নয়। সবই আমরা একই মায়ের সন্তান, সবাই আমরা একই মানুষ, সবার শরীরে একই রক্ত বইছে। তাই বলছি ওই মিথ্যাবাদী সরকারকে, এই গরিবের রক্ত শোষণ করে যে গদিতে বসে আছে আজ 30 বছর, তার 30 বছরের মধ্যে আমরা কি পেয়েছি জানো? আজ সিঙ্গুরে তাপসী মালী হয়েছে অত্যাচারিতা, এই জন্মভূমিটাকে রক্ষা করার জন্য, মান ইজ্জতটাকে রক্ষা করার জন্য আজ তাকে ধর্ষিতা হয়েছে। আজ নন্দীগ্রামের 14ই মার্চ আমি তোমাদের কাছে মেয়ের মতন বলছি, আমি এক লাঞ্ছিতা। আমার মতন অনেক মেয়ে ছেলে এইরকম লাঞ্ছিতা ধর্ষিতা হয়েছে, কিন্তু তবু আমরা চোখের জলকে করেছি আগুন। তাই আমাদের দুর্বল হওয়া উচিত নয়। ওই বুদ্ধ সরকারকে, মিথ্যাবাদী সরকারকে দেখে ভয় নয়, পুলিশ প্রশাসনকে দেখে ভয় নয়, আইন জনগণকে গড়তে হবে। সবাইকে একসঙ্গে একজোট হয়ে একই কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে একই হাতে হাত মিলিয়ে আমাদের প্রতিবাদ করতে হবে। সাম্রাজ্যবাদীদের আমাদের নির্মূল করতে হবে। আজ আমাদের এই ফসল, আমাদের लड़ाई के साथ देश के सारे जन आंदोलन आपके साथ है। हाई कोर्ट के फैसले से जरा भी आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ये आज के जुडिशियरी, आज का न्यायालय जो है, ये भी खरीदे हुए हैं, ये भी दिखते हैं। और बहुत सारे फैसले जो हम देख रहे हैं कि जुडिशियरी किस तरह के फैसले दे रही है, सरकार से प्रभावित होकर के तरह तरह से लोगों में। और ऐसे तमाम जन आंदोलन जो है हाई कोर्ट से हार जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, और सुप्रीम कोर्ट से भी कभी हार गए। सबसे बड़ा कोर्ट जो है इस देश की जनता का, और इस देश की जनता के कोर्ट में जो है कभी हार नहीं होती सत्य की। यदि लड़ाई सत्य की है, न्याय की है, धर्म की है, तो देश की जनता के न्यायालय में कभी हार नहीं होती। हमारे यहाँ कहा गया है सत्यमेव जयते। ये लड़ाई सत्य की है, न्याय की लड़ाई है, न्याय कभी हारता नहीं है। ये फैसले हैं हाई कोर्ट के, न्याय नहीं है। वहाँ कोर्ट में फैसले होते हैं, न्याय नहीं होता, निर्णय होता है। इसलिए वहाँ न्याय नहीं हुआ है सिंगूर की जनता के साथ। इसलिए जरा भी आपको अपने मन में किसी भी तरह का दबाव महसूस नहीं करना है, तकलीफ नहीं करना है, निराशा हताशा महसूस नहीं करनी है। आपकी लड़ाई लड़नी है, लड़ाई न्याय की है और सत्य की है, इसलिए लड़ाई की विजय निश्चित है। हम आपसे कहना चाहेंगे कि ये टाटा की कार जो है, ये ध्वस्त होगा कारखाना कभी नहीं। फक्र हुआ कि मैं उस देश का नागरिक हूँ जहाँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जन्म लिया। तो आपका मतलब दिल्ली में रहकर, और जब मैं उतरा कलकत्ता में और देखा कि नेताजी की नगरी में है, तो हमको लगा कि हम सीधा स्वर्ग चले गए। तो आप लोग तो यहाँ जिंदा हैं, उस राज्य के नागरिक हैं। जो बार बार कोर्ट की बात आ रही, मैं उस पर उदाहरण देना चाहूंगा। बहन मेधा पाटकर यहाँ बैठी हुई है। 5, 6 और 7 फरवरी अभी 2007 में हाई कोर्ट ने आर्डर दिया दिल्ली के 1.5 लाख लोगों के घर तोड़ने का। सब लोग नेताओं के पीछे भाग के, पार्टियों के पीछे, इसलिए 5 तारीख को हम चुप रहे। हमने कहा हम कुछ नहीं करेंगे। हमने कहा भाजपा के नेताओं को बुलाओ, कांग्रेस के नेताओं को बुलाओ। वो बुलाए पर एक कॉलोनी टूट गई, लोग बेघर हो गए। लोगों ने कहा कि हम नहीं बुलाते नेताओं को, तुम जन आंदोलनों के लोग आओ और हमारे घरों को बचाओ। बहन मेधा पाटकर पूना में थी, हमने अखबार वाले आए, ये हाई कोर्ट के आर्डर की बात बता रहा हूँ। आपके यहाँ तो आर्डर ही आर्डर है। दिल्ली सरकार, कोर्ट भी, और एक और चीज जो पढ़े लिखे लोग सुनते होंगे, पढ़ते होंगे, आपके रिश्तेदार हैं दिल्ली में, उसका नाम है कोर्ट कमिश्नर। वो जाकर देखता है घर टूटा गरीब का कि नहीं, जमीन हड़पी सरकार ने कि नहीं। तो कोर्ट कमिश्नर भी साथ था। हम लोगों ने अखबार में कहा ये कोर्ट का आदेश हम नहीं मानते हैं। क्यों नहीं मानते हैं?
क्योंकि हम उस देश के नागरिक हैं जहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों को भगाने के लिए आजाद हिंद फौज का गठन किया था, जहां भगत सिंह शहीद हुए थे, चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए थे, और कई लोग जिनकी संख्या 1 करोड़ है, किस लिए मरे? कि देश से अंग्रेजों को भगाना है। और उस पर फिर कोई और कानून, और कानून के ऊपर कोई कोर्ट कमिश्नर, वो आदेश हम नहीं मानते हैं। और हजारों लोग खड़े हुए रास्ते पर चलेंगे और जो स्वप्न उन्होंने देखा था वो साकार नहीं हुआ है, उसको साकार करेंगे। और वो क्या था? हमारा देश गणतंत्र हो। बहुत सारे डेड बॉडी हमारे पास इंफॉर्मेशन है जो हल्दी नदी में काट के फंसा दिया, और बहुत सारे डेड बॉडी है जो मिट्टी का अंदर में डाल के रखा। हम लोग नहीं कहा, सीबीआई ने जाके सीबीआई खेजूरी बाबू चौक से 4 डेड बॉडी को मिट्टी से खुला। अगर वो ठीक से कर सकता है तो बहुत सारी जगह है जिसमें डेड बॉडी मिलेगा। नदी में इतना डेड बॉडी फंसा दिया, क्या जिंदा आदमी को पकड़ के ले गया, उसको गोला काट दिया, और गोला काट के उसको जो बॉडी है उसको रिवर में डीप सी में फंसा दिया। इसी के लिए ये ऑपरेशन कंप्लीट करने के लिए